حضرت پیر قبلہ سید محمد کبیر علی شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ چورا شریف اور عالمی چادر اوڑ تحریک کے سربراہ کی طرف سے آج کی اس خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے صحافی برادری کے اعزاز میں، اور خصوصاً ورلڈ کالمسٹ کلب کے جو ارکان ہیں ناصر اقبال خان صاحب کی زیر قیادت جو اس کلب کا حصہ ہیں، ان سب کے اعزاز میں آج کی اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ میں حضور پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالی کی طرف سے اور ان کے صاحبزادگان کی طرف سے اور اس آستانے کی طرف سے تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح ہم جس صحافی برادری جس انداز میں زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے، جس طریقے سے ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، اس میں بہت کم موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں ایسی محبت بھری شخصیات کی طرف سے ہمیں چند لمحات میسر آئیں اور ہم مل بیٹھ کر کچھ ایسے معاملات پہ صلاح و مشورہ کریں کہ جس سے ملک کی بہتری ہو، جس سے ملک و قوم کے لیے آسانیاں ہوں، اور اس کے سلگتے مسائل کے اوپر اس کے حل کے لیے تجاویز لی جائیں، مشاورت کی جائے۔ تو آج کی اس تقریب کا اہم ترین مقصد عالمی چادر اوڑ تحریک کے حوالے سے اس عظیم مقصد کو آگے لے کے جانا ہے، پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ایسے ماحول میں جب اسلام کی طرف بہت سی نازیبا انگلیاں اٹھ رہی ہوں، اسلام کے یعنی مسلمان ہونا ایک جرم قرار دیا جا رہا ہو، حجاب کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہوں اور مسلمان خواتین کے لیے پردہ کرنا جرم قرار دے دیا جائے، ایسے ماحول میں جہاں عریانی اور فحاشی کی جلگار ہو رہی ہو ہر طرف سے، ایسے ماحول میں حضرت پیر سید قبلہ سید محمد کبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالی کی طرف سے چادر اوڑ تحریک کا اہتمام کرنا اور اس کو مسلسل آگے لے کے چلنا اور لاکھوں خواتین کو چادر اوڑھا دینا، ان کے ننگے سروں کو چادر سے ڈھانپ دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت غیر معمولی کارنامہ ہے۔ ہم اس بات کو، اس پیغام کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ آج قبلہ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب نے، ہمارے بزرگوں نے اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم اگر یہاں اکٹھے ہیں تو ہمیں خوشگوار ماحول میں باتیں بھی کرنی ہیں اور اس عظیم مقصد کو لے کے آگے بھی چلنا ہے۔ میری گفتگو مزید طویل نہ ہو جائے، میں حضور تمام احباب تشریف لائے ہیں، میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ جی، میں درخواست کرتا ہوں صاحبزادہ احمد سبطین شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور دوستوں کے اعزاز میں سپاسنامہ پیش کریں۔ جناب صاحبزادہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں
आस्ताना का एक अदना खादिम और जारूब कश होने की हैसियत से आप तमाम अहबाब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे गरीब खाने पे कदम रंजा फरमाया और हमें इज़्ज़त और सम्मान बख्शा। आज का प्रोग्राम चादर ओढ़ तहरीक के हवाले से जो हम 9 सितंबर को अलहमरा हाल में करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी और ताउन के लिए तमाम अहबाब को ज़हमत दी गई। ज़हमत तो नहीं है, हम सब का मुसलमान होने के नाते एक इस्लामी कह सकते हैं कौमी फरीज़ा है कि हम अपने जो अक़दार हैं हमारे दीन की, हम उनको बढ़ावे के लिए, उनके फैलाव के लिए और उनके खिलाफ जो कुव्वतें काम कर रही हैं उनका सदेबाब मिलकर करें। चादर ओढ़ तहरीक आज तक पीर खाने की तरफ से तकरीबन 11 लाख चादर माइयों, बहनों, बेटियों में तकसीम की जा चुकी है। आस्ताने का जो इस तहरीक के लिए मोटो है वो चंदा नहीं कंधा है। हम कहते हैं हमें चंदा नहीं चाहिए, हमें कंधा चाहिए, शोल्डर चाहिए। अब कंधा दे के रखें, इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे। और दूसरी तरफ पीर खाने से इजरा की गई तरके मंशियात की जो तहरीक है उसमें भी हम आपसे ताउन चाहते हैं कि एक जिंदा कौम की तामीर के लिए हमें आपका ताउन चाहिए कि जो मंशियात फहाशी उरियानी से पाक हो। तो मैं तमाम लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुसलमान, एज आ उम्मत मोहम्मदी, एज आ मिल्लत इब्राहिमी अपने जो जिसके पास जितनी ताकत है, जिस मनसब पे है, वो उस तरह ताउन करे। और ताउन की अपील है। मैं तमाम अहबाब का फिर दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और हमें इज्जत बख्शी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अज सिक मित्रां दी वडेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी। अज सिक मित्रां दी वडेरी दिलड़ी उदास गनेरी। नूनों विच शौक चंगेरी। अज नैना लाया क्यों जड़ियां। मुख चंद बदर शाशानी मथ चमक दी लाट नूरानी। काली जुल्फ ते अख मस्तानी। मखमूर अखी हिन मदबरियां। अज सिक मित्रां दी वडेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी। सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। किथे मेहर अली किथे तेरी सना। गुस्ताख अखी किथे
جاڑیاں اج سک متراں دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے صدقے سے تو ساری مشکلات ٹل جاتی ہیں، آسانیاں مل جاتی ہیں۔ الحمدللہ آج ہم ایک خوبصورت محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ میں اپنے پیارے دوست بھائی ناصر اقبال خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں مائک پر اور اظہار خیال فرمائیں آج کی تقریب کے حوالے سے، آج کے اس عظیم اور اہم مقصد کے حوالے سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر، انتہائی مکرم و محترم پیر سید کبیر شاہ گیلانی صاحب، جناب قیوم نظامی صاحب اور تمام میرے معزز محترم میرے محبوب قلم کار اور قلم قبیلے کی شان ورلڈ کالمز کپ کے عہدیداران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تقریب سعید کا مقصد 9 ستمبر کو لاہور میں ہونے والی چادر اوڑھ کانفرنس کے سلسلے میں ہے، کیونکہ پیر قبلہ کبیر علی شاہ صاحب قلم قبیلے سے بھی وابستہ ہیں، مصنف بھی ہیں، قلم کار بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں اور روحانیت پر بھی ان کو دسترس حاصل ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں شیوائے پیغمبری ہے، سنت رسول ہے، کسی سر پر چادر دینا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن شیما کے سر پر چادر اوڑھی اور ان کے بیٹھنے کے لیے چادر بچھائی، اور بہت ساری خواتین یقیناً خوش نصیب ہوں گی اس دور میں جن کو یہ تحریک ملی۔ چادر، پردہ بڑا ایک مقدس نام ہے، ایک مقدس تصور ہے۔ بدقسمتی سے چند برس پہلے پاکستان میں اقتدار پر شبگون مارنے والے ایک فوجی ڈکٹیٹر نام نہاد روشن خیال پرویز مشرف نے جس طرح اس اسلامی ریاست میں مادر پدر آزادی کا تصور دیا، روشن خیالی کا ایک تصور پیش کیا اور اعلانیہ کہا کہ خواتین اپنے سروں پر دوپٹے نہ لیں، اور بہت ساری خرابات اس نے بکیں جو یہاں دہرانا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ پھر اسی دور میں لاہور شہر میں ایک میراتھن ریس کا انعقاد کیا گیا، مقصد خواتین کو بے راہ روی کی طرف راغب کرنا تھا۔ اس کی اس خرافات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید 24-48 گھنٹے سناٹا رہا، خاموشی رہی۔ پھر باطل کے ایوانوں میں ایک آواز کی بازگشت سنائی دی، وہ آواز تھی پیر کبیر علی شاہ صاحب کی۔ انہوں نے اس کے بعد اس چادر اور تحریک کا باضابطہ آغاز کیا، اور میری ناقص معلومات کے مطابق اب تک تقریباً 1.25 ملین خواتین کے سر پر چادر اڑا چکے ہیں، اور یہ بہت بڑا کار خیر ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت غیرت مند مرد، یہ ہمارے دین کی، ہماری غیرت کی غماز ہے یہ چادر۔ اور بہت سارے اور بھی اس پاکستان میں علماء مشائخ ہیں، بہت سارے پیر ہیں، لیکن یہ شہادت اللہ تعالیٰ نے
पीर कबीर अली शाह साहब के नसीब में लिखी हुई थी और हमें भी फ़ख्र है कि ये आज हमारा हिस्सा हैं, हम इनका हिस्सा हैं। वर्ल्ड कॉलमिस्ट क्लब से वाबस्ता हैं, हमारे सुप्रीम एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं और हमें बड़ा नाज है कि हम इस प्लेटफार्म से भी और चादर और तहरीक के प्लेटफार्म से भी मिलके इंशाअल्लाह इस तहरीक को आगे लेके चलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब से इनको दावत भी देता हूँ कि 9 सितंबर को सुबह 11 बजे अलहमरा हॉल 1 में लाहौर में जो एक खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा, तमाम अहबाब उसमें शरीक भी हों और इस कॉज के लिए अपने कलम से लिखें भी। और ये सदका जारिया है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह। अब मैं दावत खिताब दूंगा पहले मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी साहब से कि वो आए मुख्तसर वक्त के लिए अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह मेरे कायद मोहतरम जनाब मोहम्मद नासिर इकबाल खान साहब फरमा रहे थे कि किबला पीर साहब ने इस अंदाज में माशरे को एक ऐसे रास्ते पर लगाया कि हमारी बहनों, हमारी बेटियों के सरों पर चादर, ये इतना अजीम काम है कि आजकल के दौर के जो नाम नेहाद रोशन ख्याल लोग हैं, जैसे भी चंद दिन पहले भी ये नारा लगा था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सोशल मीडिया पे हमने देखा, तो ये गंभीर सूरत हाल जो है, इस्लाम की जो बेस है वो ही रूहानियत है। जब कहते ना कि किसी खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि जनाब मेरा हया जो है वो मेरे आंखों में है, पता नहीं इस तरह की लॉजिक्स देते हैं। लेकिन बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माशरा तरतीब दिया, आपने जो इनकलाब लाए, आपने उसका अमली तौर पर सबूत पेश किया। अब हम देख लें कि हम क्या बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी बेटियां इस तरह सरे बाजार फिरें जिस तरह आजकल हो रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं पीर साहब का कि उनकी वसातत से कौम को इस तरफ राग़िब किया जा रहा है। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि जिस तरह के ड्रेसेस आजकल पहने जा रहे हैं बच्चियों को, वो देख लें कि क्या हमारी सोसाइटी से जिस तरह का रूहानी इनकलाब लाने की सोच हम रखते हैं या जिस तरह का इस्लाम हमसे तकाजा करता है वो क्या हम पूरा कर रहे हैं। कभी जो तेरे दिल से जमाले मुस्तफ़ा गया, खुदा गवाह हाथ से तेरा खुदा गया। मोहब्बतों की बस में मोहब्बतों की बात कर, तू शहद शहद हलावतों की बात कर, ये बू जहल की कौन तुझे हरकतें सिखा गया। कभी जो तेरे दिल से जमाले मुस्तफ़ा गया, खुदा गवाह हाथ से तेरा खुदा गया। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। मोहतरम जनाब अशरफ आसमी साहब, एडवोकेट, ज़माना तालिब इल्मी से ही बड़े पुरजोश और सरगर्म मुकर्रर रहे और तहरीर व तकरीर में जो मलका उन्हें हासिल है उसका इजहार भी कर रहे थे और दिल की गहराइयों से निकलने वाली उनकी बातें हमारे क़ुलूब व अज़हान तक पहुँच रही थी। अब मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ डॉक्टर नबीला तारिक एडवोकेट साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ। नवाए वक्त में वो कॉलम लिखती हैं, प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड कॉलमिस्ट क्लब विमेन विंग की। उनसे दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि वो इजहार ख्याल फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं सबसे पहले पीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने आज हमें यहाँ इनवाइट
इनवाइट करके जो इज़्ज़त बख्शी हमें, हमारे लिए बहुत बाइज़ इफ्तिखार है ये बात। पीर साहब की जो तहरीक है, चादर और तहरीक जो है, मैं सबसे पहले इसको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आजकल के दौर में जिस तरह से हमारा माशरा चल रहा है, जिस तरह से 21वीं सदी में हम देख रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से बच्चियों की परवरिश की जा रही है और जिस तरह से सोसाइटी को दिखाया जा रहा है, जिसको हमारा कल्चर बताया जा रहा है कि जो कि बिल्कुल हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर जो हमें इस्लाम ने तरगीब जो की है, जो हमें इस्लाम ने बताया है कि जिस बच्चियों को अपने जिस्म को ढांप के रखना है, बच्चियों को निगाह नीचे रखनी है, बच्चियों को शर्म और हया के दायरे में रहना है। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि हम वो सब कुछ भूल चुके हैं और इससे मैं समझती हूँ कि हमारे माँ बाप का, हमारे बड़ों का बहुत ज़्यादा रोल है। वो बच्चियों की तरबियत उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से करनी चाहिए और मैं पीर साहब को बहुत बहुत सलाम पेश करना चाहती हूँ। उन्होंने ये तहरीक शुरू करके हम सब को उस रास्ते पर डालने की तरगीब दी है और इंशाल्लाह हम इस्लाम की पैरवी करते हुए इंशाल्लाह अपनी बच्चियों की तरबियत बिल्कुल इस्लामी नुक्ते नज़र के साथ करेंगे और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी बच्चियों की तरबियत उसी तरह करें। शुक्रिया। माशाल्लाह डॉक्टर नबीला तारिक साहिबा बड़े मुख्तसर वक्त में दिल की बात कह रही थी और सच तो यही है कि आज ज़रूरत है इस बात की कि हम सब पूरी कौम का हर फर्द इस अजीम मकसद के लिए निकले और अपना किरदार अदा करे। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ इजहार ख्याल के लिए बैरिस्टर मखदूम वसीम कुरैशी साहब से, जो रोज़नामा पाकिस्तान में अपने कलम आजमाई करते हैं और ख़ुद भी 2 अखबारात के एडिटर भी हैं, ऑनर भी हैं। उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब वसीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज का जो ये प्रोग्राम इनेकाद किया गया है वर्ल्ड कॉलमिस्ट क्लब के कोलैबोरेशंस के साथ, और ये जो मसला चादर और तहरीक की सूरत में पॉइंट आउट किया गया है, हम में से जितने अहबाब बहन भाई जितने भी लोग हैं वो इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। और मैं एक बात समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ बार अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है कि उसने हमें आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और में पैदा किया और हम दुनिया के बेहतरीन मज़हब के अंदर हम लोगों ने परवरिश पाई। इससे खूबसूरत नुक्ता और क्या हो सकता है कि हम लोग उस हस्ती के पैरोकार हैं जिसके लिए ये दुनिया बनी है और उनके कदमों की धूल के सदके हम यहाँ खड़े हैं। और ये जो तमाम चीज़ें हैं हम जानते हैं, क्या शायर ने क्या खूबसूरत कहा है कि मैं जानता हूँ लुटेरों के सब ठिकानों को, मैं जानता हूँ लुटेरों के सब ठिकानों को, शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते। और इसी का ही काउंटर है कि मोहब्बत तो शराब की मोहब्बत तो सियासत का चलन भूल गए, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। तो पीर साहब की नज़र में दूसरा मिसरा करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे नक्शे कदम पर चलते हुए कि एटलीस्ट हमें एक ऐसी हस्ती इस दौर में नज़र आई जहाँ रोशन ख्याली, जहाँ हमें कल्चरली तौर पर तोड़ा जा रहा है, जहाँ वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान में काम करने वाली हज़ारों ऑर्गेनाइजेशंस को सिर्फ डॉलर्स दिखाए जाते हैं, उनको यूरो दिखाए जाते हैं, ब्रिटेन पाउंड दिखाए जाते हैं। और उसके पीछे क्योंकि बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट और ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट मैंने उसको डीपली देखा है। एजेंडा एक होता है कि इनको कल्चरली तोड़ दो, और दुनिया भर के नकादों ने एक लाइन निकाली है पीर साहब कि जिस कौम का कल्चर तोड़ दिया जाए उस कौम को दोबारा किसी सूरत खड़ा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता।
اور اس وقت میں ہم تمام احباب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے پیر صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ ایک چادر اوڑھ تحریک سامنے آئی ہے. چادر اوڑھنا کوئی بری بات نہیں، عورت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک چھپی ہوئی چیز، ایک چھپی ہوئی چیز. دیکھیں ماڈرن ورلڈ کے ساتھ چلنا ہے، ان کو کم بیک بھی کرنا ہے، لیکن اپنی عزت عصمت چار دیواری کے تقدس کو بچاتے ہوئے اپنے بچوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی ہمیں ایسی تربیت کرنی ہے. ہم نہیں منع کرتے کہ آپ سکولز مت جائیں، آپ یونیورسٹیز مت جائیں، آپ اپنے گھر میں مت بیٹھیں، آپ اسلام کو سٹڈی کریں، ماڈرن علم کو بھی حاصل کریں، مگر اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے یہ جو چادر ہے اس کو ڈھانپ کر رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کار خیر میں جو جھنڈا ورلڈ کالمسٹ کلب اور پیر صاحب نے اس کو گاڑا ہے، لاہور کی اس دھرتی پر جو کہ قطب الابلاغ ہے، داتا علی حجویری کی نگری ہے، اور جہاں سلطان ہند اپنے عبادات کر کے گئے، کیوں نہ ہم ان کے اس ایجنڈے کو آگے پرموٹ کریں. ایٹ لیسٹ ہم جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، میرے بھائی میری بہنیں، یہ اہل قلم جو ہیں، اہل قلم کہتے ہیں نا کہ تیری رسوائی کا ڈر ہے اگر، تیری رسوائی کا ڈر ہے اگر لکھنے پہ آ جائے قلم سے سر قلم کر دیں. مگر نہیں، ہم اس دین کے فالوور ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فالوور ہیں، جس نے ٹالرنس کا سبق دیا، جس نے بردباری کا سبق دیا، جس نے تحمل سے، جس نے محبت سے راہ چینج کرنے کا درس دیا. اور قبلہ پیر صاحب کی رہنمائی میں، ان کے زیر سایہ رہ کر، اور ناصر صاحب ہماری آنریبل جو لیڈرشپ ہے ورلڈ کالمسٹ کلب کی، ان کی شیڈ میں رہتے ہوئے ہم نے ماڈرنائزیشن کے جھنڈے کو ہم انہیں پرموٹ نہیں کرنا. ہم نے اپنے مذہب سے، ہمارے دنیا کے تمام کوڈ آف کنڈکٹ اسلام سے ڈیویٹ ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی خاتون اول بھی ایک چادر تحریک کی، میں کہتا ہوں ہماری ممبر بن چکی ہے. اور یہ ممبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلیسنگ سے اور اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے بنی ہے کہ آپ کی دنیا کی جو نمبر 1 خاتون پاکستان میں جن کی نمائندگی کر رہی ہیں، ان میں محترمہ مانیکا صاحبہ ہیں. کچھ بھی ہے، لوگ جو بھی نکات کہیں، لیکن میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. چہرہ ڈھانپنا وہ ان کا اپنا ایک ہے، لیکن چادر جو انہوں نے لی ہے یہ ہم سب کی عکاس ہے. اور آخر میں ایک چھوٹی سی جو سجیشن ہوگی، کیونکہ میں اپنی پرسنل ایک چھوٹی سی آبزرویشن، ناصر بھائی جانتے ہیں، رمضان سے قبل جب میں عمرے پہ گیا تو میں نے اپنے گھر والوں کو بھی میں نے کہا کہ دیکھیں، جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں، عمرہ مکمل کر رہے ہوتے ہیں، تب آپ کو اجازت ہے آپ چہرہ نکال سکتے ہیں. اور جب آپ چہرہ نکالنے کے بعد جب آپ نے روٹین کی عبادات کرتے ہیں، اگر میں غلط ہوں تو پیر صاحب امینڈ کر دیں گے، کہ ان تمام عبادات کے اگر آپ اپنا چہرہ ڈھانپ لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے، تاکہ کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. اور اس تحریک کے حوالے سے انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. ہمارے جو تمام قلم قبیلے کے ساتھی آئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی لاٹ آف اپریسیشنز کی، آپ کی وجہ سے ایک ایسا نقطہ جس پہ ہم بات نہیں کر سکتے تھے، آج ہمیں بات کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے تاکہ اس کو آگے لے کر چل سکے. ماشاءاللہ بیرسٹر مختوم وسیم قریشی بہت خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. میں ملتمس ہوں برادر محترم سینئر صحافی جناب اختر علی بدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور چادر اوڑھ تحریک کے مقاصد کے حوالے سے حضور قبلہ پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب الجیلانی آستانہ علیہ چورہ شریف، ان کے حوالے سے ان کی اس تحریک کو جس قدر پذیرائی حاصل ہوئی اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب برادرم اختر علی بدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. تقریباً 5-6 مہینے پہلے حضور قبلہ شاہ صاحب کی جب
खिदमत में हम हाजिर हुए। तो हमारे साथ और भी काफ़ी दोस्त थे। तो आपने एक ऐसी बात की कि चादर जो है वो चादर और चार दीवारी ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे घरों में, हमारी बच्चियों के लिए। तो क्यों ना आप सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो मेरा इसमें साथ दें। तो मैंने उन्हें उस दिन एक पंजाबी का एक शेर सुनाया कि कल जिस सर दे बिनू उत्ते भांडे सन 3-4, कल जिस सर दे बिनू उत्ते भांडे सन 3-4, अज वो सिर सहार नहीं सकता गिठ चुनी दा पार। बेटियों को जो हम घर में तरबियत देते हैं उसका जो अमली जो नमूना है वो ये है कि जब वो बाज़ार में जाती हैं, गलियों में जाती हैं, तो कम अज़ कम लोगों को ये पता लगे कि ये मुसलमान की बेटी है। एक अरब की रवायत है, एक अरब के एक बंदे की मैंने एक कोटेशन पढ़ी, तो उसने कहा कि एक औरत जा रही थी तो उसने गोश्त उठाया हुआ था, तो गोश्त के ऊपर उसने कपड़ा दिया। तो बंदे ने पूछा कि इसके अंदर क्या है। तो उसने कहा कि अगर यही बताना होता कि इसके अंदर क्या है तो इसको मैं ढांपती ना। तो जिस तरह काबतुल्लाह शरीफ की हुर्मत है तो उसके ऊपर गिलाफ है, तो इसलिए वो मुकद्दम है। कुरान पाक है उसके ऊपर गिलाफ है, तो इसलिए वो मुतबर्रक है तमाम किताबों से। तो मुसलमान औरत का जो हुस्न और जो उसकी ब्यूटी है, वो जो उसका हया है, वो उसकी चादर और उसके पर्दे में। तो शाह साहब ने जो ये एक अमली कदम उठाया और आज हम सारे दोस्त इकट्ठे हैं, तो हमें शाह साहब का जो है वो दामे दर में सुख ने साथ देना है इस तहरीक में। ये एक बहुत नोबल काज है। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम जो है वो शाह साहब को इस मकसद में, इस अमली जो है आपने कदम उठाया चादर को तहरीक के हवाले से, कामयाब व कामरान फरमाएँ। नेक तमन्नाओं के साथ शाह साहब अल्लाह ताला रोज़नामा अशक के एडिटर जनाब अख्तर अली बदर आपसे मुखातिब थे और चादर चार दीवारी के तक़द्दुस पे उन्होंने गुफ्तगू की। अब मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सुरखैल लाहौर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स की एक एसोसिएशन, एमरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर, जियो टीवी के सीनियर रिपोर्टर, सीनियर सहाफ़ी जनाब अदनान मलिक से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से नवाजें। जनाब अदनान मलिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब की इजाज़त से आज तमाम दोस्त इनके एक काज में शरीक होने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और वो काज सिर्फ इनका नहीं है, हम सब का है, हम सब के घर का मसला है। मगरिब की रोशन ख्याली ने हमें इस हद तक मजबूर किया कि हम अपने टीवी चैनलों से एंकरों के दुपट्टे तक हमने छीन लिए। हमने अपने लिबास से दुपट्टा छीन लिया जो उस सारे जिस्म को कवर करता था। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल करने का कानून मौजूद है, लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पमाल करे तो उस पर किसी की गिरफ्त नहीं है। शाह साहब किबला ने एक तहरीक शुरू की, चादर ओढ़ तहरीक, जो पाकिस्तान से निकलकर मगरिब तक फैल गई। मगरिब की रोशन ख्याली तो बहुत है, उसके किस्से भी बहुत सुने गए, लेकिन वहाँ उन्होंने उनकी तंग नज़री के सामने, उनके अंधेरों के सामने एक दिया जलाया है कि हिजाब न सिर्फ मुसलमान औरत बल्कि हर औरत के लिए लाजमी है। हिजाब आपको इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ देता है। जिस तरह एक घर में तमाम लोग महफूज होते हैं, इसी तरह एक हिजाब में, एक चादर में तमाम बेटियां, ख्वाह वो मुस्लिम हो ख्वाह गैर मुस्लिम हो, वो महफूज होती हैं। उन पर किसी की बुरी नज़र, किसी की गंदी नज़र नहीं पड़ती। इसलिए हम सबको
शाह साहब किबला का साथ देना चाहिए और हर तरह दामे दुरमे सपने कदमे हर तरह हमें इनके साथ हैं, इनका साथ देंगे। और अब तक ये तकरीबन 15 लाख के करीब चादरें डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, लेकिन हमें सब मिलेंगे तो इंशाअल्लाह इससे आगे बढ़ेंगे। शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की और कहते होते हैं कि हम चंदा नहीं लेते, हमें आपके कंधे की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है। तो आइए आज सब हम मिलकर अहद करें कि अपने घरों में भी चादर ओढ़ तहरीक को पहुंचाएंगे और पूरे मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने शहर में इस काज को लेके पूरी दुनिया के सामने जो कलम से लिख सकते हैं, जो मुंह से बोल सकते हैं, जो तहरीर और तकरीर के ज़रिए जैसे भी इस मिशन को आगे पहुंचाएंगे, अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी होगा और हमारा ज़मीर भी मुतमिन होगा कि हमने एक नेक काज में इनका साथ दिया है। बहुत शुक्रिया। आगे सीधे चलते हैं। नहायत मुख्तसर अंदाज में इसके अंदर ही आना अदनान मलिक हमसे किसी को कहेंगे अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अपने इंतहाई अदब से दरख्वास्त गुजार हूँ, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ, सीनियर कॉलम निगार और हुकूमत का हिस्सा भी रहे किसी दौर में, साबिक वज़ीर ममलिकत जनाब क़य्यूम निज़ामी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की इस बाबरकत महफिल में हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह साहब की शुरू करदा तहरीक के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब पीर सैयद गिलानी शाह साहब, मुअज़्ज़ज़ खातून व हज़रात, मैं सबसे पहले पीर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज हमें यहाँ पर ये दावत दी और अपनी जो एक तहरीक चला रहे हैं उस सिलसिले में एक रहनुमाई एक हमें ये दे रहे हैं, तो उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और दूसरा, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले जो चादर ओढ़ तहरीक शुरू की थी, क्योंकि उनकी नीयत नेक थी और उनका जो पैगाम है वो रूहानी था और उसकी बुनियाद जो थी वो उन्होंने कुरान और सुन्नत के ऊपर रखी हुई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी में ही कामयाबी और कामरानी से सरफराज फरमाया। और जिस तरह के बताया गया है कि कोई 11 लाख वो चादरें उड़ा चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आप कुरान का मुतालिया करें तो उसमें एक लफ्ज़ तकवा का जो है वो बार बार अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि भाई आप नमाज़ पढ़ो ताकि आप तकवा इख्तियार करो, आप रोज़े रखो ताकि आप मुत्तकी बन जाओ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तहरीक चला रहे हैं चादर और तहरीक, ये भी तकवा की बुनियाद पर ही चला रहे हैं कि हमारा जो मुआशरा है, जो अल्लाह की मंशा और अल्लाह का तकादा था और कुरान की मंशा और तकादा भी यही है कि हमारा जो मुसलमान का जो मुआशरा है वो मुसलमान नज़र आए, उसमें इस्लाम की जो इक़दार है, जो सीरत की इक़दार है, जो कुरान की इक़दार है वो नज़र आनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि उस सिमत एक बहुत कोशिश, बहुत अच्छी एक मुस्बत कोशिश है जिसमें हम तमाम जो भी यहाँ के पाकिस्तान के रहने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हम कहते हैं, हम आइन में भी ये लिखा हुआ है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन जब आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को, बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि ना ये पाकिस्तान अभी तक इस्लामी बना है और ना ही ये जमहूरी बन सका है। बहरहाल ये एक लंबी गुफ्तगू है जिसके ऊपर फिर कभी कोई मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह बात करेंगे। जहाँ तक मैंने कोई एक कोशिश की है कुछ किताबें लिखने की, मसलन मैंने एक किताब लिखी है मामलात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मैं कोई हैरान हूँ कि अल्लाह ताला की ये देन है कि मैं पीपल्स पार्टी का जियाला, और लोग कहते हैं कि यार तुम जियाले, तुमने ये कैसे किताब लिखी? मैंने कहा ये अल्लाह ताला की तौफीक है, ये अल्लाह ताला तौफीक देते हैं जिसको देते हैं, तो वो उसकी तौफीक के बगैर तो ये किताब नहीं लिखी जाती। तो एक मामलात रसूल बड़े आसान ज़बान में लिखी है जो लोगों को समझ आ रहे हैं। तो ये भी वो भी एक किताब भी एक शाह साहब आप खुश होंगे तहरीक की शक्ल जो है तैयार कर चुकी है और लोग बड़े शौक से उसको पढ़ते हैं। उसके बाद मेरे ज़हन में ऐसे ख्याल आया कि मुझे कुरान के ऊपर भी, हालांकि मैं कोई ना इतना मतलब स्कॉलर हूँ, आप जानते हैं मेरी औकात क्या है, अल्लाह ताला भी जानता है, लेकिन मैं नीयत मेरी एक थी नेक। मैंने कहा कि यार यहाँ पर ना तो सीरत का पैगाम शाह साहब कोई आसान ज़बान में लोगों तक पहुँचा है, नौजवानों तक, और ना ही कुरान का जो पैगाम है, हम इल्मी फिक्री बहसें करते हैं बहुत ज़्यादा जो लोगों के ज़हनों में नहीं बैठती। तो मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मामलात इंसान और कुरान।
अब उसके 6 एडिशन पिछले 4 महीने में 6 एडिशन माशाल्लाह वो छप चुके हैं। तो ऐसा और उसमें अगर मुझे ये एक मौका भी है, अगर आप मुझे इजाज़त दें 2 मिनट में आपकी तवज्जो ज़रा कुरान पाक की तरफ दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हम तर्जमे से तो पढ़ते नहीं हैं। सबसे बड़ी बीमारी जो है मैं समझता हूँ वो ये है कि हम कुरान पाक को तर्जमे से नहीं पढ़ते। हालांकि ये एक हदायत की किताब है, ये समझने की किताब है, ये सवाब की भी है लेकिन हदायत की भी है। तो हदायत उस वक्त आएगी जब आप तर्जमे से पढ़ेंगे। तो जब मैंने किताब लिखी तो एक आयत जो है ना वो मेरे ज़हन के ऊपर बैठ गई, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और वो आयत जो है शाह साहब, वो कुरान फहमी की कुंजी है। यानी अल्लाह ताला ने बता दिया कि भाई आपने कुरान फहमी कैसे हासिल कर दी। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमा दिया कुरान पाक में कि आपने कुरान को समझना कैसे। यानी बहुत सी उलझनें आपकी ख़त्म हो जाएंगी अगर आप इस आयत पर ज़रा गौर करें मेहरबानी करके। और वो आयत क्या है उसका मफहूम आपको मैं बयान करता हूँ कि अल्लाह ताला ने सूरत आले इमरान में ये इरशाद फरमाया है कि देखो भाई मुसलमानों, ये कुरान में 2 तरह की आयत हैं। ये ज़रा गौर से सुने मेरे भाई दोस्त। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कुरान में 2 तरह की आयत हैं। एक है मुहकमात यानी वादे जो समझ में आने वाले, और दूसरी है मुशाबहात जिसमें कुछ शुबा हो सकता है। और जो मुहकमात जो वादे हैं अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये कुरान की बुनियाद है। असल बुनियाद वो कुरान की वही मुहकमात जो वादे आयात हैं। लेकिन वो अल्लाह ताला कहते हैं जिनके दिलों में टेढ़ है, कजी है, वो बजाय इसके कि वो वादे आयात को समझें और उस पर अमल करें, वो मुशाबहात में पड़ जाते हैं। उसकी वजह से इल्मी और फिक्री वैसे जो आप देख रहे हैं सदियों से, और वो हम हट गए हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं कुरान पाक। उसमें एक ये भी ये जो चादर कोट तहरीक, ये भी उसी का एक तकादा है कि यानी आप ये देखें कि सीरत देख लें या कुरान देख लें, ये इज्जत वकार हुर्मत तकद्दस ये चीज़ें इस्लाम की शान है। और ये जो चादर है ये आपको एक तकद्दस फराहम करती है और बताती है कि हम एक मुसलमान सोसाइटी में रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप मेहरबानी करके आपके सारे मसले हल हो जाएंगे अगर आप कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दें और उन आयात पे ऊपर जोर दें। यानी कुरान के बदन के ऊपर बैठे ना, जो टेक्स्ट है ना उसको छोड़ दिया। हम तफसीरों में पड़ गए, वो जो फलां ने तफसीर लिखी, फलां ने तफसीर लिखी, भाई जो अल्लाह का बदन था वो छोड़ दिया, तफसीरों में पीछे पड़ गए। आज हालात जो खराब हो रहे हैं ई साहब, जो मेरा एक नाकस मुतालिया है वो ये है कि हम इल्मी फिक्री बहसों में पड़ गए। हम मेराज की बातें करते हैं लेकिन ये नहीं कहते कि भाई अल्लाह ताला कहता है कि जो वादा करो पूरा करो और झूठ ना बोलो। किसी गरीब का हक है वो तुम्हारे माल में, वो उसका हक दो और देखो अकड़ के ना चलो, नरम लहजे में बात करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग करते थे आपको मालूम है कि वो जाहिल लोग थे, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते थे। बाद औक़ात वो गमगीन हो जाते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो आयत नाज़िल होती थी, क्या मेरे नबी, आप मेरे नबी हो, आप एक इनकलाब लाना चाहते हो, आप एक पैगाम देना चाहते हो मेरा, आप उनके साथ नरम लहजे से बात करो और अफ़व और दरगुजर से काम लो, अंदाजा करो। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं। और हम आपस में जो जब बात करते हैं किस तरह इख्तियाल अंगेजी, और आप देखते हैं टीवी में जो कुछ हो रहा है हमारी सियासत में, यानी बिल्कुल ही हटे हुए हैं कुरान और सीरत से। तो इसलिए मैं एक बार फिर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप तवज्जो दिला रहे हैं कि भाई सीधा रास्ता ये है, इस्लाम का रास्ता ये है, इधर आओ, अपनी ज़िंदगी को बावकार बनाओ। अब एक आखिरी बात करके, क्योंकि ये मौका नहीं है तकरीर करने का, सब दोस्तों ने बात करनी है, मुझे एक बहुत ही रेलेवेंट वाक़या अल्लामा इकबाल का याद आया। अब देखो ये खुदा की कुदरत कि मैंने एक तहकीकी किताब कायदे-ए-आज़म पे लिखी है, एक तहकीकी किताब अल्लामा इकबाल पे ऊपर लिखी है और एक सीरत में लिखी है, कुरान पे लिखी है। यानी पाकिस्तान के हवाले से वो पैगाम मुकम्मल हो गया। यानी ये चारों जो हैं, एक कुरान, सीरत और कायदे-ए-आज़म अल्लामा, बहुत ही रेलेवेंट है पाकिस्तान के लिए, हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, सब। तो जब मैं तहकीक कर रहा था मुझे एक वाक़या अजीब, अल्लामा इकबाल को हुकूमत बरतानिया ने एक बहुत बड़ा ओहदा पेश किया। उन्होंने कहा कि जी हम आपको जनूबी अफ्रीका में वाइसराय बनाना चाहते हैं। अब देखिए ये वाइसराय का ओहदा बहुत बड़ा होता है, लेकिन उन्होंने कहा जी इसका एक प्रोटोकॉल है, इसका प्रोटोकॉल है। कहना जी क्या प्रोटोकॉल क्या है? कहा जी प्रोटोकॉल ये है कि आपकी जो बेगम है उनको पर्दा नहीं वो करेंगी, ना करें कि वो, उसके तकादा ये है उस मनसब का, वाइसराय होने का, कि आपकी बेगम जो है वो पर्दा नहीं कर। तो उन्होंने कहा वो क्या कह रहे हो ये मुझे, मैं आशिक़ रसूल हूँ और मैं जब अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाके बारगाह में पेश होगा वो मुझसे सवाल करेंगे, ओ इकबाल तुम मेरे आशिक़ थे और तुमने दुनियावी मनसब के लिए मेरी सीरत को छोड़ दिया, मेरे पैगाम को छोड़ दिया, तो मैं क्या जवाब दूँ?
تو یہ ہے میرے دوستوں بھائیوں، یہ ہے عشق رسول کو اطاعت رسول کے ساتھ ملانا۔ ہم صرف عشق کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، اور وہ عشق نامکمل عشق ہوتا ہے جس میں اطاعت نہیں ہوتی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پیر صاحب، اور علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، آپ نے بہت سے عشاق رسول کی گفتگو سنی ہوگی، لیکن جعل عاشق رسول کی گفتگو بھی آپ نے سماعت کرنی ہوگی۔ میں نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ لوگ کہتے تھے کہ تم تو جعلے ہو، تم نے سیرت النبی پہ لکھ دی کتاب، تم نے قرآن پہ تحقیق کر لی۔ وہی جعلہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ثابت آپ نے یہ کیا کہ جعلہ ہونا اپنی جگہ پہ، اور جعلہ عاشق رسول ہونا یہ بڑی بات ہے۔ اور خوش نصیبی ہے کہ آج ہم سب قلم کار، حرمت قلم کے وارث یہاں جمع ہیں، جہاں ہم گلی نالی شولنگ سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک کی بات کو رپورٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، مسائل پہ لکھتے ہیں، حالات پہ لکھتے ہیں، واقعات پہ لکھتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے کہ جہاں نیگیٹیوٹی نہ ہو ہم وہاں خبر محسوس نہیں کرتے۔ صحافی برادری کا یا شعبہ صحافت کا، برادری کا میں شاید نہیں کہنا چاہیے، کہ شعبہ صحافت کا یہ المیہ بن چکا ہے، یا اخبارات اور ٹی وی کے لیے جہاں نیگیٹیوٹی نہ ہو وہاں خبر نہیں محسوس کی جاتی، یہاں اچھائی ہوتی ہے وہیں تو سب سے بڑی خبر ہوتی ہے۔ ہم سب کو مل کے آج اس بات کا عہد کرنا کی چاہیے کہ ہم چار دیواری کے معاملات ہوں، دین کے معاملات ہوں، وہاں سمجھ بوجھ کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، ادب کے ساتھ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم قلم اٹھائیں گے، ہم لکھیں گے، ہم چادر اور تحریک پہ بھی لکھیں گے۔ چادر اور تحریک کو انشاءاللہ العزیز جہاں تک یہ پیغام نہیں پہنچ سکا وہاں پہنچا کے دم لیں گے۔ ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہے۔ آج کچھ روٹین تھوڑی سی الٹی ہو گئی، وہ شاید اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا، ترتیب دیا، تو اس وقت کم دوست، ابھی آدھے دوست آئے تھے، باقی تشریف نہیں لا سکے تھے۔ اب جیسے ہی دوستوں کی تعداد ماشاءاللہ سب مکمل ہو چکی ہے، سب مہمان آ چکے ہیں، تو نہایت ہی مختصر تعارفی نشست ہوگی۔ مائک آپ کے سامنے آ جائے گا، یا بغیر مائک کے بھی ہم اپنا تعارف پیش کر سکتے ہیں کہ اپنا ادارہ اور اپنا نام ادارہ صرف بتانا ہے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہم سب احباب حضرات جو موجود ہیں وہ کن کن اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تھوڑا تعارف کروائیں گے، اور اس کے بعد حضرت پیر سید پیر صاحب قبلہ کی خدمت میں بعد اب درخواست کروں گا کہ وہ خطاب فرمائیں گے۔ اس سے پہلے ہم جلد از جلد یہ تعارفی نشست مکمل کریں گے۔ آپ کے خطاب کے بعد پھر جناب کھانے اور ہمارے درمیان کوئی حائل ہونے کی ضرورت نہیں کر سکے گا، کسی کی وجال نہیں ہوگی۔ تو میں اپنی سی تعارف کا آغاز کرتا ہوں۔ خواجہ خالد آفتاب میرا نام ہے جی، الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہوں، اور لاہور میں مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ اور اخبارات کے ساتھ وابستگی رہی۔ اس وقت ریڈیو پاکستان کے ساتھ پروگرام کے حوالے سے وابستہ ہوں، اور لاہور چیمبر آف کامرس کا ایک FM ریڈیو ہے، اس کے اوپر پروگرام کرتا ہوں، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری ہے۔ جی میرا نام عدنان ملک ہے، جیو نیوز میں سینئر کارسپونڈنٹ ہوں، جیو نیوز کے بانی ارکان میں سے ہوں۔ اس سے پہلے جنگ کے ساتھ وابستہ تھا۔ میری تقریباً کوئی 30 سال سے میری وابستگی ہے میڈیا کے ساتھ، اور اب بھی اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے گا تو کام کرتے رہیں گے، کیونکہ اور تو کوئی کام آتا نہیں ہے ہمیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام میاں شہزاد حسین ہے، اور میں M.Phil ہوں کوانٹری یونیورسٹی UK سے۔ فی الحال ایز اے لیکچرار کام کر رہا ہوں کامسٹ یونیورسٹی،
और कॉलमिस्ट हूँ अल-शर्क इंटरनेशनल। थैंक यू। आगे भेज, ले चले।